morning class. I will start a new chapter, Materials of Daily Use Clothes. Now, as everyone has some basic requirements, either it is plant or animal or human being. Similarly, food, clothes and shelter are the three basic needs of a human. किसी भी आदमी के लिए ये तीन चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं. We have talked about the food, its importance, why it is necessary, how we are utilizing it, from where we are getting. Now we will come to the second part of it, that is clothes. Now clothes are essential to protect our body from roughness of weather. Sometimes the weather is very warm, sometimes it is very cold, sometimes it is rainy. So during all these seasons we should wear certain clothes which can protect us from that harsh weather. We wear different clothes in different seasons. हम लोग अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं. Like in summers, nowadays summers are there, so you will like to wear light colored clothes and thin clothes. And during the winters you want to wear soft and heavy clothes so that you can protect your body from cold and wind. Even the people of different region wear different types of clothes. So this was about that, why and how we are fulfilling our requirement. But what happened when there was no cloth? Imagine in that time when early men, they don't have any types of clothes, they don't know how to make the cloth. So what they were doing? Basically the early man was hunter. So a hunter, what he will do? He killed animals for his food, leaving behind the hide to dry in sun. He learned to cover his body with big leaves. अपनी को बड़ी बड़ी पत्तियों से, हाइड मीन्स डेड स्किन से अपने को ढकता था. फेदर्स, फर, इस तरह से वो अपने आप को प्रोटेक्ट करता था. इवन द साधु संत, उस समय में एंशियंट टाइम में जो साधु संत होते थे वो भी अपने आप को इन्हीं सब स्किन से और इससे अपने आप को बचाते थे. इवन टुडे यूज़ ऑफ लेदर एंड फर फॉर क्लोथिंग इज़ इन फैशन इन वेस्ट. आज भी जो है, जो लेदर है उसका यूज़ क्लोथिंग के लिए किया जाता है. हालांकि गवर्नमेंट हैज़ बैन, मतलब किसी भी वाइल्ड एनिमल की कोई स्किन कोई नहीं यूज़ करेगा, ना ही उसको इस पर्पज़ से मारेगा. तो आजकल क्या करने लगे हैं हम लोग? वी आर यूजिंग आर्टिफिशियल लेदर, वी आर सिंथेसाइजिंग आर्टिफिशियल लेदर, सिंथेटिक लेदर for making shoes, belts and purses. So that way we are using it. So this is the way how the people are covering themselves, and in earlier time what they were doing. And now comes the whatever clothes we are spinning, जो भी हम कपड़े बनाते हैं, आखिर उसके लिए मटेरियल हमको कहाँ से मिलता है? तो फिर when we are making a fabric is made from fiber. वो कहाँ से बनता है? फाइबर से. फाइबर इज़ फाइन फिलामेंट विच कम्स फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज. फाइबर एक फाइन फिलामेंट है जो डिफरेंट सोर्सेज से आता है. सम कॉमन फाइबर्स मेड इनटू फैब्रिक आर कॉटन, वूल, सिल्क एंड सिंथेटिक्स. अब कॉमन फाइबर जो होते हैं वो कॉटन, वूल और सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं. सिल्क और सिंथेटिक फाइबर्स, कॉटन, जूट, वूल एंड सिल्क, दे आर नेचुरल फाइबर्स बिकॉज ये हमें नेचर से मिलते हैं, या तो प्लांट से या एनिमल से. Wool and silk come from animals, while cotton and jute we are getting from plants. इसको हम plants से पाते हैं. Synthetic fiber is made from chemical substances. Polyester and nylon are synthetic fibers. अब synthetic fiber किससे बनता है? ये जो है different types of chemical substances से बनता है, और उसके example हैं nylon and polyester. Then comes the an activity which you can do in front of or in guidance of your elders. You can take small piece of cotton, wool, silk and synthetic fiber. Then what you require, another thing is that you want a tong or a lamp, split lamp. By the help of tong मतलब जो पकड़ने की जो चीज़ होती है, फॉर्सेप टाइप, उसको पकड़ के आप उस थ्रेड को जला सकते हैं. नाउ होल्ड अ पीस. अब एक का एक पीस पकड़िए
और उसको फ्लेम के ऊपर लाइए। कॉटन बर्न्स विथ अ लाइक अ पेपर। कॉटन कैसे जलेगा? पेपर की स्मेल देते हुए। एमिटिंग एनी स्मेल, कोई इसमें खास स्मेल नहीं आएगी, पेपर की तरह बर्न करता है। इट डज़ नॉट मेल्ट, और मेल्ट भी नहीं करेगा। सिल्क जब बर्न करेगा तो वो एक बर्निंग हेयर की तरह बर्न करेगा, जैसे बाल जलता है तो जैसी स्मेल आती है तो वैसी। सेम इज़ द केस विथ वूल। जब वूल जलता है वो भी इसी ऐसी स्मेल देता है, क्योंकि ये सब एक प्रोटीन के बने होते हैं, एनिमल प्रोटीन के। तो जब एनिमल प्रोटीन जलता है तो बर्निंग हेयर जैसी स्मेल आती है। इसके बाद आता है सिंथेटिक फाइबर। जब वो बर्न करता है तो वो स्मोक देता है और प्लास्टिक जैसे बर्न करता है। तो ये डिफरेंस हो गया इन चारों में। अब हमको ये समझना है कि फ़ाइबर क्या है, यार्न क्या है और फैब्रिक क्या है। फाइबर इज़ टेक पीस ऑफ कॉटन क्लोथ, प्रिफरेबली अ पीस फ्रॉम सर्जिकल कॉटन बैंडेज। अब कॉटन बैंडेज लीजिए, उसमें जो है वीव करी हुई छोटे छोटे थ्रेड्स दिखते हैं, आप उसमें से एक थ्रेड निकाल लेंगी तो दैट विल बिकम फाइबर। और जब फाइबर फैब्रिक बनाया जाता है तो उसको यार्न में बड़े लपेट के उसको टेस्ट करके यार्न बना लिया जाता है उसका। उस यार्न को से फिर फैब्रिक बनाया जाता है। तो पहली यूनिट क्या है कि फर्स्ट यू विल टेक आउट द फाइबर, कहीं से भी, चाहे नेचुरल वे में मिल रहा है आपको, चाहे किसी से मिल रहा है, यू विल टेक आउट द फाइबर एंड देन उससे आप यार्न बनाएंगी, थ्रेड बनाएंगी, उसकी रीलिंग कर लेंगी, उसके बाद आप फैब्रिक बनाएंगी। सो दिस इज़ द यूनिट, मतलब फर्स्ट यूनिट हुई फाइबर, उसके बाद हुई यार्न, उसके बाद फैब्रिक। सो दिस शोज दैट फाइबर इज स्पन इनटू यार्न and yarn is further woven into fabric or the cloth. A fiber is the fine filament. Fiber is spun into yarn, the thread. Thus yarn is made of fiber. Yarn is then woven into fabric. Fibers which are obtained from natural sources are called natural fibers. Fibers which are obtained from chemical substances are called synthetic fibers.